السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ ہر قسم کی تعریفات رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو بنایا، کائنات کو بنایا، کائنات کے اندر رہنے والی ہر چیز کو بنایا اور ہمارے لیے ہدایت کا بندوبست فرمایا، انبیاء کرام کو بھیجا، ہماری اصلاح فرمائی، جنتوں کا راستہ دکھایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے صراط مستقیم لے کے آئے، راہ حق لے کے آئے، راہ ہدایت لے کے آئے، جنتوں کا راہی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں۔ معززات، آج آپ کو بلایا گیا پیرنٹس ڈے کے حوالے سے کہ کچھ آپ کے بچوں کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں، لیکن آپ نے کوئی پرجوش اثر نہیں دکھایا اور دل جو ہے وہ بوجھل سا رہا، خوش نہیں ہوا لوگوں کو دیکھ کے کہ جتنے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا کچھ بھی نہیں آیا۔ بچوں سے محبتیں نہیں ہیں، ہمیں ان کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے کہ ان کی کوئی قابل سپورٹ نہیں لینا چاہتے۔ ہم کیا ہے جاتے ہمیں اساتذہ سے کوئی رابطہ کرنے میں کوئی قباحت ہے؟ کیوں نہیں ہم جاننا چاہتے کہ ہمارے بچے کہاں تک پہنچے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں؟ اور خود بھی کبھی بچوں کی جو ہے وہ کوئی توجہ کی طرف ان کی کیا جانے بھی نہیں کرواتے۔ زیادہ تر پیرنٹس، جتنی کلاسیں میرے پاس ہیں 5 کلاسیں، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ کم ہی کچھ لوگ ہیں، تقریباً کوئی 2% یا 3% لوگ، جن کو اپنے بچوں کا کچھ خیال ہے کہ ہمارے بچے کچھ بنے، کچھ پڑھیں، کوئی آگے بڑھیں، کوئی معاشرے کے اندر کوئی شخصیت بنے، کسی سٹینڈرڈ پہ کھڑے ہوں۔ باقی اللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اسکولوں کے اندر عربی رائج ہو چکی ہے با ترجمہ، اور اب لوگوں کا رجحان بھی قرآن حدیث کی طرف بہت زیادہ ہو گیا۔ جب سے اسکولوں کے اندر ترجمہ شروع ہو گیا، ہر بچہ، ہر بچی، ہر بڑا، اور یہاں تک کہ اساتذہ کرام بھی، ان کی بھی ریویژن شروع ہوگی نا، ان کی دہرائی اپنی شروع ہوگی۔ ان کی ساری زندگی تو بس ریڈنگ کے ساتھ ہی پڑھا، اور اب پڑھانا ہے تو خود بھی دیکھنا ہے، تو کچھ نہ کچھ توجہ ادھر بھی۔ تو مزید ہم بھول چکے تھے کہ دنیا کے اندر ہم کرنے کے لیے کیا آئے ہیں۔ اصل دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سیکھیں، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں سیکھیں کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، اور وہ قرآن جو 23 سال کے عرصے میں اترتا رہا، آخر اس کے اندر کون کون سی باتیں تھیں، آخر کون کون سے احکامات تھے؟ وہ جو نبی 23 سال کے عرصے میں لوگوں کو سناتے رہے، آخر تک کیا باتیں تھیں وہ ہم بھی سیکھیں۔ آئے دنیا کے اندر اور اپنے ہی دنیا کے کام سنوارتے دنیا سے چلے جانے کا ٹائم بھی آ گیا، اور دنیا کے کام پھر بھی نہ سنورے، اور جو کرنے والا تھا اس کو بھول کے بیٹھے رہے۔ تو معززین، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کی جہاں بہترین تربیت قرآن و حدیث کے حوالے سے ہے، با ترجمہ ان کو بہترین سکھایا جاتا ہے، لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اور انشاءاللہ العزیز جلد ہی یہاں ترجمے کی کلاسز لگنے والی ہیں۔ یہ
बच्चे जामियात के पेपर दे रहे हैं कुछ, और कुछ बच्चे वो भी हैं जिन्होंने स्कूलों के पेपर देने के इंशाल्लाह जो मार्च के बाद अप्रैल से जो काम शुरू हो जाएगा। इसी जगह पे आप सब कुरान सीखने के लिए आए हैं, किसी उम्र की कोई क्या नहीं। और जिस जगह मेरी क्लासें लग रही हैं जामियात की, वहाँ बेहद उम्र खवातीन भी आके बैठती हैं, कुरान को सुनती हैं, और वो बाअमल खवातीन, और उनको देख के मुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस याद आ जाती है। आपने फरमाया है, अल्लाह मेरा ईमान बुढ़िया औरत की तरह बना दे, क्योंकि वो जो सुन लेती है इसके ऊपर फिर पक्की हो जाती है, बाअमल हो जाती है। तो वो भी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दावत दें, लेके आए, और असल काम वो जिसके लिए आपको बुलाया गया है, बच्चों के ऊपर खुसूसी तवज्जो दें। बच्चे आपकी तवज्जो के मोहताज हैं, और सारी उम्र ही माँ बाप की जरूरतें रहती हैं जिंदगी के अंदर। घरों वाले हो भी जाएं, औलादों वाले हो भी जाएं, औलादों की भी औलादें हो जाएं, फिर भी हमें अपने वालिदैन की जरूरत रहती है, महसूस होती रहती है। अगर जिंदा है वालिदैन तो कभी कोई बात हो, दूसरा मुझे किसी भाई ने, मेरे भाई ने मुझे कोई बात की, तो मैंने कहा मैं बताऊंगी अम्मी को। यानी आज भी उम्र के इस दौर में भी मुझे भी अम्मी की जरूरत है, और ये उम्र वालिदैन की खास तवज्जो की, और जिनके वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं उनको अपनी जिंदगी पूरी अपने वालिदैन की जरूरतें महसूस होती रहती हैं। हर मौके पे अगर मेरी वालदा होती तो ऐसे हो जाता, अगर मेरा बाप होता तो ऐसे हो जाता। जिंदगी भर जो जरूरतों की चीजें अल्लाह ताला ने बनाई, और जो ये जिंदगी, और खासतौर पर ये टाइम बच्चों की निगहदाश्त का, बच्चों की तरबियत का, ये माँ बाप की छाप होती है बच्चे के ऊपर। जो छाप आप लगा देंगे वो पूरी जिंदगी भी नहीं जाएगी। जो माँ बाप ने बात सिखा दी अपने बच्चे को, वो पूरी जिंदगी नहीं भूलेगी, और बच्चे उसके ऊपर पक्के हो जाएंगे। चाहे वो इदारों में सीखें भी, अच्छे इदारों में भेजें भी, वो अच्छी बातें सीख के आए भी। मसलन आप देखा करें कि हमारे माँ बाप ने कौन सी अच्छी बात सिखाई थी हमें। मसलन जब हमारा स्टूडेंट का दौर था, हम स्कूलों में जाते थे, बच्चे थे, अभी बचपन था, तो मेरी अम्मी ने मुझे ये बात सिखाई कि बेटा जिसकी माँ या बाप या दोनों या एक फौत हुआ हो, आपने उसके साथ लड़ाई नहीं करनी है, और अगर हो जाए लड़ाई तो आपने मारना नहीं है उसे। तो पूरी जिंदगी ये बात पल्ले में बांध ली कि ये काम नहीं करता, क्योंकि वो मेरी माँ की बात थी, और वो हमने एक अच्छी बात समझ के उसको अपने ले लिया। और मेरे अब्बू की एक बात है कि बेटा कुरान जरूर पढ़ना है, चाहे थोड़ा पढ़ा जाए, चाहे एक आयत पढ़ी जाए। और खुद भी सिर्फ उनको नाजरा आता था, तर्जुमा तो आता नहीं था, समझ तो आती नहीं थी। यानी जितना नॉलेज था उनके पास, कम अज कम उसके ऊपर तो डटे रहे। सुबह उठे, एक दो आयत पढ़ी, भागते दौड़ते अपने कामों में, अच्छा मैं हाजिरी तो लगा लूँ। कभी कहना कि मेरी हाजिरी आज रह गई, आज सेकंड टाइम मैं हाजिरी लगा लूँ, यानी कुरान की हाजिरी। तो हमने भी वही आदत जो है सारी उम्र वो उठाए रखी कि हाजिरी लगानी है। वो बचपन का दौर गुजरा, वो जवानियों के दौर आ गए, वो लड़कपन का दौर आया, वो जवानियों के दौर आए, वो भी दौर गए, और आज हम तोरा साहब के सामने बैठे हुए हैं। कभी बच्चे थे हम, और इंशाअल्लाह ये बच्चे जो बैठे हुए हैं, जब भी इंशाअल्लाह कभी स्टेज पे आएंगे, इसी चेयर पे आएंगे, इसी मकाम पे आएंगे, और फिर वो कुरान की हाजिरी की फिर ऐसी आदत बने कि बच्चा छोटा भी है, चाहे 2 माह का है, चाहे 1.5 माह का है, काम भी करने हैं, बच्चों को तालीमी इदारों के अंदर भी भेजना है। कुरान को हाथ में रखा हुआ है, ऊपर ही रखा हुआ, सामने शेल्फ रखा हुआ, उसके अंदर निशानी रखी हुई है।
जल्दी से बड़ी सारी निशानी होती है, जल्दी से बाहर काम करने के लिए आना है, किचन में पहुंचना है, तो जल्दी से उसको पकड़ा है, हाजिरी लगानी है, एक आयत पढ़ी उसका तर्जमा पढ़ा। और हमारी टीचर ने हमें सिखाया तर्जमे के साथ पढ़ना है, तर्जमे के बगैर नहीं पढ़ना। तर्जमे के बगैर नहीं समझ आएगी आपको क्या पढ़ा। वो एक आयत पढ़ी, खड़े खड़े दौड़ते दौड़ते, बच्चा भी हाथ में रो रहा है। ये सारे काम दुनिया के किए हैं। आज बच्चों वाली माएँ कहती हैं पहले ये कर लेंगे फिर वो कर लेंगे। बच्चा हाथ में है, दूसरे बच्चों को तालीमी इदारों में भेजना है, जल्दी उनकी तैयारियां करनी है, नाश्ते की भी, यूनिफॉर्म की भी, जल्दी से कुरान का पकड़ा, एक आयत पढ़ी, उसका तर्जमा पढ़ा, उसको 1 मिनट लगा चाहे उसको आधा मिनट लगा, रख दिया वहीं और फिर अपने कामों में लग गया। और फिर उस एक आयत ने, एक टाइम की हाजिरी ने, एक आयत की हाजिरी ने आज हमें यहाँ हाजिरी लगाने के ऊपर खड़ा कर दिया। सीखा गया ना, जो कुछ पढ़ा उसका पता तो चला ना कि ये हमने पढ़ा। हम आज आपके बच्चे स्कूलों से गैर हाजिर होते हैं, हल्का सा नजर जुकाम है, छुट्टी करवा ली। कभी मैंने अपने बच्चों को छुट्टी नहीं करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे सारे के सारे ज़हीन तरीन और अपनी क्लास में अव्वल आने वाले बच्चे सारे के सारे। हाँ, जो छुट्टी नहीं करवाई, मामूली नजरा जुकाम है, दवाई दी उसे, दवाई दी और बैग में रख दी दवाई, बेटा इतने टाइम पे खा लेना, कोई बात नहीं, साथ साथ पढ़ाई भी चलती रहेगी और ये दवाई भी साथ साथ चलती रहेगी। अगर कोई ज्यादा ही मसला है तो बच्चे को छुट्टी करवा ले, लेकिन फिर उसका सबक कवर करवाएं भी, बच्चा पीछे ना रह जाए। और आज देखें कि बच्चा हफ्ते में 2-3 छुट्टियां कर रहा है, 2 छुट्टियां मस्त है बच्चे की। ऐसा क्यों हो रहा है? माँ बाप की तवज्जो नहीं है बच्चों के ऊपर। अपने बच्चों को किसी आला मकाम पे लेके जाना है, कोई चीज इनको दिलवानी है, कुछ हासिल करवाने के लिए उनको हम इदारों के अंदर भेजते हैं। आपने कभी देखा सड़कें रोड बन रही होती हैं तो बड़े बड़े पत्थर देखे आपने? हर कोई उनको ठोकर लगा के आगे निकल जाता है ना। यही पत्थर उठा के आप किसी संग तराश को दे दो, वो ऐसी प्यारी मूर्ति बना देगा कि आप उसको अपने घर के शल में सजा के रख लेंगे। वो किसी के हाथ आ गया ना, उसको तराशा गया ना, उसको बनाया गया ना। और अगर किसी हिंदू के हाथ में आ जाए उसी पत्थर की मूर्ति तो वो उसी से मुरादें मांगने शुरू कर देगा, उसकी इबादत शुरू कर देगा। मकसद क्या है? बच्चों की तरबियत, बच्चों को टाइम पे सुबह जगाना है। अब मेरे पास जितने भी क्लासें हैं उनसे पूछती हैं बेटा नमाज पढ़ी? नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? 8th की बच्चियां हैं, 7th की हैं, 6th की हैं, पढ़ी क्यों नहीं नमाज? अम्मी ने उठाया ही नहीं, अम्मी खुद नहीं भी उठी होंगी, तभी तो बच्चों को नहीं उठाया। लेकिन अगर तुम खुद उठती हो और बच्चों को नहीं उठाते तो ये तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जो है वो गुनाह है। बच्चों की तरबियत क्यों नहीं की? खुद तो पढ़ लिया तुमने नमाज, तुझे बच्चे की परवाह नहीं। बच्चा जहन्नम में जा रहा है, आग में जलने की तैयारियां कर रहा है और आप खुशी से अपने काम निपटारियां करके उसको क्यों नहीं उठाया गया? और कई बच्चियां वो भी हैं जो कहते हैं कि हमने नमाज तो नमाज से याद की हुई है, लेकिन हमें नमाज का तरीका नहीं आता, पढ़ने का तरीका नहीं आता हमें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसको नमाज पढ़ानी शुरू कर दो। अपने साथ खड़ा करो, रुकू करो, सजूद करो, क़याम करो। बच्चा वैसे करे। नफल नमाज के अंदर ऊंची आवाज से पढ़ा करो ताकि बच्चे को पता चले कहाँ क्या पढ़ना है। इसके अलावा आदत दिलवाने के लिए भी आप नफल पढ़ सकते हैं बच्चे को साथ खड़ा करके। ये किसने सिखानी है? तुम्हारे घर में जाएगी मालूमात, तुम्हारे घर में आएगी मालूम, कौन सिखाएगा? ये माँ के करने वाले काम लोग नहीं करेंगे, ये माँ ही करेगी। अल्लाह मज़ेदार है। वो घराने बड़े ही अल्लाह के डर से दूर हैं जिनके घरों में ये तालीमात नहीं है, ये इब्तदाई मालूमात, ये इब्तदाई ट्रेनिंग।
हमारे नबी ने फरमाया 7 साल का बच्चा हो जाए उसको नमाज पढ़ानी शुरू कर दो, और जब वो 10 साल का हो जाए तो अब मार के नमाज पढ़ाओ उसे, अब उसे मार के नमाज पढ़ाओ। 3 साल ट्रेनिंग के, 3 साल ट्रेनिंग, 3 साल आपने उसको सिखाया, उसको पढ़ाया, उसको याद करवाया, और अब जब नमाज छोड़े तो उसको मारना है। और 10 साल का जब बच्चा हो जाए तो इसका बिस्तर भी अलहदा कर दो, इसकी चारपाई अलहदा कर दो, बच्ची बच्चा दोनों या 2 बच्चियाँ एक चारपाई पे ना उनको सुलाओ। ये हमारे नबी की बातें हैं। अल्लाह अकबर। और नमाजें सिखाएं उनको घर के अंदर, उनको कम से कम अगर माँ पढ़ी हुई है कुरान तो बच्चे को सबक कुरान का तो याद करवाएं। अब बच्चे 6 में चले गए, बच्चे 8 तक पहुँच गए और बच्चों को कुरान की रीडिंग करनी नहीं आती। जब रीडिंग नहीं करनी आएगी तो तर्जमा कैसे सीखेंगे? और ये पहले भी कवानीन थे और आज भी कवानीन है ये कि मैट्रिक तक, पहले तो कवानीन थे, आज हो सकता है कवानीन से भी चेंज हो गया कि मैट्रिक तक जिसने कुरान नहीं पढ़ा होता तो उसको फर्स्ट ईयर में दाखिला नहीं मिलता था। आज खाली रीडिंग के भी नहीं रह गए हमारे बच्चे, सिर्फ अंग्रेजी तालीम के पीछे दौड़ और बस पीछे अंग्रेजी तालीम के पीछे हम दौड़ रहे हैं। इसको तो ना छोड़ के जाओ। अगर तुम सिर्फ दुनिया ही के पीछे लगे रहे तो दुनिया आखिरत और दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। दुनिया को भी लेना है, आखिरत को भी लेना है, आखिरत की भी तैयारियां करनी है। दुनिया के अंदर जो करने वाले काम है वो भी हमारी ज़रूरतें हैं, उनको भी करना है। जो बच्चे हैं जो माएँ नहीं पढ़ी हुई, कम से कम मेरे ख्याल में आज कल कोई 5 जमातें तो हर माँ ज़रूर पढ़ी होगी। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आज से 40 साल पहले देहातों के अंदर भी इदारे बन गए थे। 40 साल 35 साल पहले देहातों के अंदर इदारे बन चुके थे और बच्चियाँ बच्चे पढ़ रहे थे। आज हर कोई तकरीबन 5 जमातें ज़रूर पढ़ा होगा, जो पुराना भी होगा। और आज की नई माएँ, मैट्रिक तक तालीम है उनकी, अपने बच्चों के ऊपर वो तवज्जो नहीं देती और कहती कि तवज्जो वो लोग दें। लोग कौन दें? और अपने पास से टाइम भी दे बच्चों को। बेटा तुम खोलो अपना बैग खोलो, बेटा होमवर्क करो, सब कापियों को कर लिया, सब किताबों का सबको याद हो गया, इतना तो आप कह सकते हैं कि नहीं? जो नाजरा पढ़ने वाले बच्चे हैं और जिन आप ये माएँ आप हमसे ज़्यादा जानती हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनको नाजरा पढ़ना आता है और जिनको नहीं आता। वो माएँ खूब जानती हैं, उस्तादों से ज़्यादा जानती हैं किसको केयर की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है किसको। तो मज़े साथ अपने बच्चों के ऊपर रहम करें। एक औरत ने सवाल पूछा आलम साहब से कि मेरे बच्चे सुबह उठते नहीं हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो मैं उनको काफ़ी कोशिश करती हूँ, तो फिर क्या उनका इलाज किया जाए? नहीं उठते फिर तो मेरी जो है वो काम ख़त्म हुआ। आलम साहब ने कहा कि अगर तुम्हारे बच्चे आग में जलना, आग लग जाए, तुम्हारे घर को, कमरे को आग लग जाए, तो आप फिर क्या कहेंगे कि बच्चे जो हैं वो जलते रहें? कहने लगे कि नहीं, मैं तो खींच के निकालूंगी उनको बाहर। कहा फिर आपको पता नहीं कि बच्चे जन्म को जा रहे हैं तो उनको खींच के निकालो, मस्जिदों में भेजो, नमाजों के लिए उनको खड़ा करो। ये दरसगाह होती है, सबसे पहली दरसगाह माँ की गोद है बच्चे की। इस तरह की एक बच्चा आया पढ़ने के लिए उस्ताद के पास, अब वो पढ़ रही थी उसकी तारीख, तो बच्चे ने कहा कि मैं कुरान की रीडिंग ठीक करने के लिए आया हूँ, कारी साहब को सुनाने के लिए, हिफ्ज़ कुरान। कारी साहब ने कहा सुनाओ, फलां सूरत आती है? तो मैंने उसने कहा हाँ, वो सुना दी। और सुनाओ, फलां सूरत आती है? हाँ, वो भी आती है। और सुनाओ, फलां सूरत आती? हाँ। सूरत बकरा भी आती है? हाँ। सूरत आल इमरान भी आती है? हाँ। वो कहते हैं कि बच्चे ने सुनाते सुनाते कितना ही कुरान सुना दिया ज़बानी और बगैर गलती के सुना दिया। तो मैंने कहा बेटा तुम्हें और भी कुरान आता है? कहने लगा कि सारा कुरान ही आता मुझे। छोटा बच्चा कहता है कि सारा कुरान ही आता मुझे, 8-10 साल का, सारा कुरान आता है। मैंने कहा कल को ना अपने बाप को साथ लेके आना,
अगले दिन वो अपने बाप को साथ लेके आया, तो बाप को मैंने देखा कि वो बाप तो सीधा साधा लग रहा था देखने से, तो मैं हैरान होकर बाप की तरफ नजरें डाल रहा था। तो उस बाप ने कहा कि आपकी हैरानगी की मुझे समझ आ गई है, मैं मेहनत करने वाला बंदा हूँ, मेरा भेस इसी तरह का है। मेरे 3-4 बच्चे हैं, सारे के सारे हाफिज हैं। उनकी माँ हाफिजा थी, और जो ही उन बच्चों ने तरबियत के मराहल में शुरू हो गया, 2 साल का 1.5 साल का, तो माँ ने दुआएं याद कराई, माँ ने कुरान हिफ्ज़ करवाना शुरू कर दिया। 8-10 साल की उम्र में सारे बच्चे हाफिज बन गए। ऐसी होती है माँ की छाप। हम अपने आने वाली औलादों के लिए माएँ कैसी ढूंढते हैं, उस चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। हम तो ज़ाहिरी शक्ल सूरत देखेंगे और ये अंग्रेज़ी तालीम देखेंगे उसके पास कितनी है। कभी किसी ने ये नहीं देखा कि दीनी तालीम भी है इसके पास कि नहीं। ये बच्ची जो है जिसे हम घर में लेके आ रहे हैं, जिसने हमारी आने वाली नस्ल की जिम्मेदारी उठानी है, उसके पास कोई दीन का इल्म भी है कि नहीं। और जिसको हम दें अपनी बच्चियाँ, वो भी तो कम से कम कुछ बना के दें अपनी बच्चियों को, वो भी तो अपने घर में खुश रह सकें, उनके भी घर भी तो सुकून से चलें। हम भी तो कोई चीज़ बना के दें किसी को। एडिसन एक बच्चे का नाम था, उसकी मैं तारीख पढ़ी मैंने। वो बच्चा पढ़ाई में नील था, तो जब उस्ताद पढ़ा के थक गए, तो उस्ताद ने कहा कि आप कल को ना ये मेरा वो लेटर लिख के दे दिया, ये अपनी अम्मी को लेटर दे देना। और लेटर के ऊपर लिख दिया कि तुम्हारा बच्चा खुंदज़ीन है और इंतहाई नालायक है, इसको किसी और इदारे में दाखिल करवा दें प्लीज़, मेरे पास नहीं पढ़ता जी। अच्छा, उसने जाके बच्चे ने अपनी माँ को वो लेटर दे दिया। माँ ने लेटर पढ़ा तो बच्चे ने कहा कि क्या लिखा हमारे साथ जाने इसके ऊपर है। माँ कहने लगी कि बच्चे ने, तुम्हारे उस्ताद ने लिखा है कि बच्चा माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, थोड़ी सी इसको तवज्जो की ज़रूरत है, तो बेटा किताबें खोलो और तवज्जो की ज़रूरत है। अब माँ की जो आँख खुल गई, माँ ने इसको सबक याद करवाना शुरू कर दिया। माँ ने जब तवज्जो देनी शुरू कर दी, बच्चा पढ़ता गया और वो बच्चा बहुत बड़ा साइंसदान बना। और जिसने बल्ब इजाद किया था वो बच्चा था, जिसने पहली जो इसकी इजाद थी वो बल्ब बनाया था उसने। उसके बाद उसने 100 इजादात की। अगर माँ उसे 4 थप्पड़ लगा देती और उसे कहती कि तू है ही नील, तेरा बाप भी नील था, तेरा दादा भी नील था, तेरी दादी भी ऐसी थी, तुमने क्या पढ़ना है, बैठो इधर ही, तुमने तुम्हारी तौहीन भी करवा दी। अब माँ की जहानत की वजह से एक बच्चे की जहानत जो है, उसके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें थी वो ऊपर आना शुरू हो गई, वो उजागर हो गई। कहीं हमारा रवैया तो ऐसा नहीं है अपने बच्चों के साथ। कुछ बच्चे ज़्यादा ज़हीन होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से दरमियाने दर्जे में होते हैं, उनको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर ज़हीन के साथ मेहनत की जाए तो वो बहुत ऊंचा निकल जाता है, और अगर औसत बच्चे के साथ भी हम तो थोड़ी सी तवज्जो करें तो वो भी बच्चा इंशाल्लाह कामयाबी के मरहल में पहुंच जाता है। और कुछ बच्चे कुंज़ैन होते हैं, वो भी चल जाते हैं, कुंज़ैन बच्चे भी चल जाते हैं। जब उनको माँ बाप सहारा देंगे, आसरा देंगे, जब उनको चलाएंगे तो वो भी चलते हैं। कभी अपने बच्चे को ये नहीं समझना कि मेरा बच्चा कुछ भी नहीं, फलां का तो इतना बन गया, तो फलां का वो पढ़ता है, तो फलां ऐसा करता है। जब अपने बच्चे के ज़हन में ये चीज़ें बनाएंगे ना कि तुम कुछ भी नहीं हो, तो फिर वो कहेगा तो मैं कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो जब हम उसकी ढार से बंधाएंगे कि तुम सारा कुछ कर सकते हो, तो फिर सारा कुछ कर लेगा। एक बच्चा क्लास के अंदर बड़ा नील था, नालायक था, 8वीं तक पहुंच गया वो। इसी तरह हर क्लास से आगे कर देना, हर क्लास से आगे कर देना। और उस्ताद उससे सबक सुनते नहीं थे, इसको कुछ आता ही नहीं, सुनना क्या है, इधर बैठा रहता। एक दिन उस्ताद ने उसको अपने पास बुलाया, जो खुद वो आदमी अपना इंटरव्यू दे रहा था, अपने पास बुलाया और उस्ताद ने उसको थपकी दी और कहने लगा, कासिम तुम अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, अगर तुम याद करना चाहो तो कर सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, तुम भी इन बच्चों की तरह हो सकते हो, तुम तवज्जो नहीं देते। जब उसको थपकी दी और उसे ये कहा गया तो बच्चे को समझ आ गई कि मैं भी कर सकता हूँ। यानी एक छुपी हुई उसकी सलाहियत जो है वो जिंदा हो गई, उजागर हो गई। उसने पढ़ना शुरू कर दिया, फिर पढ़ता ही गया वो। फिर उसने बड़े बड़े नॉलेज हासिल किए
اور آج وہ بندہ, آپ نے شاید ان کی وہ باتیں سنی ہوگی کہ کروڑوں سے زیادہ, ملین سے زیادہ لوگ ان کی بات کو سننے کے لیے یوٹیوب کھولتے ہیں. قاسم علی شاہ جس کا نام لوگ آپ نے سنا ہوگا. ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے. ایز اے پیرنٹس, ایز اے والدین, ہمارے اندر وہ چیز نہیں. ایک بچے کو تھپکی, ایک محبت, ایک دلاسا, ایک جفی کہ بیٹا تم تو سارا کچھ ہی کر سکتے ہو. یہ دیکھو یہ کتنا آسان ہے. تھوڑا سا ماں جب اس کو آسرا دے گی تو وہ بچہ آگے چلے گا. یہ بیٹا دیکھو یہ تو اتنا آسان ہے, یہ دیکھو یہ تو اتنا آسان ہے, یہ بھی اپنے کر لیں گے, یہ بھی کر لیں گے, یہ بھی کر لیں گے. تو جب یہ بھی کر لیں گے, یہ بھی کر لیں گے تو وہ کر لے گا بچہ. دراصل نا ہماری محبتوں کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو, اور تھوڑی سی اپنائیت کی ضرورت ہوتی ہے, تھوڑا سا دلاسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بچوں کو کبھی محبتوں سے, کبھی بیٹھ کے ان کو یہ ان کے ہوم ورک بھی کروا دیا کریں. اور انشاءاللہ یہ نمازوں کی پابندی بھی امیاں ہی کروائیں گی سب کی. بچے بچے ہی ہوتے ہیں, بچوں کو نیند پیاری ہوتی ہے, بچوں کو اپنی کھیل پیاری ہوتی ہے, بچوں کو رشتہ داروں کے ہاں جانا پیارا ہوتا ہے کہ ہم جائیں, چل پھر کے آئیں, سیر سپٹے بچوں کو بڑے پیارے لگتے ہیں. لیکن ایز اے پیرنٹس ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ان بچوں کو جان کے گلیوں میں نہیں چھوڑ دینا, ان کو کچھ بنانا ہے. اللہ کو حساب دینا ہے کل کو. کوئی جائے دنیا سے جا کے کہ اللہ میں 4 بچے جان کے, اللہ میں نے دنیا کے اندر 6 بچے جنے, اللہ میں نے 10 بچے جنے, میں نے بڑے کام کیے دنیا کے اندر, اللہ تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کسی کو کچھ سکھایا بھی ہے؟ کوئی چور بن گئے, کوئی ڈاکو بن گئے, کوئی ہیرا پھیری کرنے والے بن گئے, معاشرے کے برے لوگ بن گئے, لوگوں کو ستانے والے بن گئے, کیا چھوڑ کے آئیے دنیا کے اندر؟ کوئی ہے جواب دینے کے لیے کچھ پاس ہمارے؟ اپنے اوپر بھی غور کریں. اور نماز ایک ایسی چیز ہے, امی کی نماز کیوں جائے, جوان بچیوں کی نمازیں کیوں جائیں, 10 سال سے اوپر بچے کی نماز کیوں جائے؟ الحمدللہ میرے بچے کہتے ہیں کہ امی بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسئلے پوچھ رہے ہیں کہ پچھلی نمازیں جو نہیں پڑھی ان کا کیا کیا جائے, ہم نے اب نمازیں شروع کی. کوئی خواتین بڑھاپے میں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے اب نمازیں شروع کی ہیں تو اب کیا کیا جائے. تو شکر الحمدللہ میرا بچہ کہہ رہے کہ بچے کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے جو کبھی زندگی میں پچھتائے کہ ہم نے بچپن میں نمازیں نہیں پڑھی, ان نمازوں کا کیا کیا جائے, یا جوانی میں نمازیں نہیں پڑھی ان کا کیا کیا جائے. اپنے بچوں کو وہ چیز بنائیں جو اللہ چاہتا ہے, وہ کام ہم دنیا کے اندر کریں جو اللہ ہم سے لینا چاہتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبے کا طواف جب ہو رہا ہوتا ہے, ہمیشہ ہی ہوتا رہتا ہے, کبھی نہیں رکتا ہے, کبھی نہیں رکتا, طواف ہوتا ہی رہتا ہے. جب کرونا کے دن بھی تھے تو فاصلے سے ہو گئے تھے لیکن طواف چل رہا تھا. اچھا, آپ میں سے کسی نے حج عمرہ کیا ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے, اور یا پھر کچھ لوگ یہ لائیو بھی دیکھتے ہیں طواف کعبہ. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کعبے کا طواف ہو رہا ہوتا ہے. جب جماعت کا ٹائم ہو گیا تو جدھر کوئی کھڑا ہے سب نے کعبے کی طرف منہ کر لینا ہے, ادھر والے ادھر کر لیں, ادھر والے ادھر کر لیں. سینٹر میں ہے نا کعبہ, وہاں سب نے کھڑے اپنی اپنی صفیں بنا لینی ہے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. جتنے بھی آپ نے چکر 7 چکر لگانے ہیں نا وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے, طواف کے لیے 7 چکر ہے, تو جتنے آپ کے چکر ہو گئے ہیں اپنے اپنے گن لینے ہیں. پہلے نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنے کے بعد وہیں سے چکر پھر آپ کا شروع ہو جائے گا. اتنا اہم کام اللہ کے گھر کا طواف جو کبھی رکتا ہی نہیں. اور خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, سردی ہے, گرمی ہے, دن کا دوپہر ہے, گرمی کے دن ہے, چاہے بارشیں ہیں چاہے اندھیریاں ہیں, طواف چل رہا ہے. تو جب نماز کا ٹائم ہوگا طواف بھی رک گیا. تیرے گھر کے کام طواف سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. نمازوں کو لیٹ کی ہم نے, یہ کر لوں اس کے بعد نماز ہوگی, یہ کر لوں اس کے بعد نماز ہوگی. نہیں, جب طواف رک گیا ہے تیرے کام بھی رک جائیں, چھوڑ دو ان کو, ادھر ہی پھینک دو ان کو. فَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ, اللہ میں تیری طرف اس لیے جلدی آیا کہ تو راضی ہو جائے مجھ سے. کاموں کو چھوڑ کے جلدی جلدی میں حاضری لگانے کے لیے آیا اللہ کہ تو راضی ہو جائے مجھ سے. اور جنگ کے دنوں میں
जंग लगी हुई है, और उस वक्त तो जंगें तो तीर तलवार की जंगें होती थी, हमारी तरह की जंग आज की जंगों की तरह जंगें नहीं होती थी। तीर और तलवार की जंगें हैं। वो सामने से मुखालिफ भी निकल के मैदान में खड़े हैं, इधर से मुसलमान भी निकल के मैदान में खड़े हैं, हाथों में तलवारें हैं, तलवारों से जंगें हो रही हैं। जब उसका सार नहीं, जब उसका सार नहीं, जब मुसलमान का सार नहीं, जब गैर मुस्लिम का, मुशरिकिन मक्का का सार नहीं। तो फिर भी अल्लाह ताला ने फरमाया जब नमाज का टाइम हो जाए, एक सफ जो है वो एक साइड पे निकल आए जहाँ नमाज अदा की जाए, मैदान जंग में नहीं, एक साइड पे इमाम खड़ा हो जाए नमाज पढ़ाने के लिए। एक सफ जो है दुश्मनों के साथ लड़ रही है, दूसरी सफ जो है वो इमाम के पीछे आके खड़ी हो जाए, एक रकत नमाज अदा करे, एक रकत, वो एक रकत पढ़ के अपना सलाम फेर दे, वो चली जाए, दूसरी साफ आ जाए, इमाम खड़ा है, दूसरी साफ आ जाए, दूसरी नमाज, दूसरी साफ जो है वो एक रकत पढ़े, इमाम खड़ा है, वो अपना सलाम फेर के चली जाए, तीसरी साफ आ जाए, इसी तरीके से एक रकत पढ़े, चौथी आ जाए, एक रकत पढ़े, इमाम की हो गई 4 रकतें, जिस नमाज की 4 रकतें होती हैं। और जो खौफ, इसको कहते हैं हालत खौफ की नमाजें, और जो हालत खौफ में हैं उनकी हो गई एक एक रकत, वो एक रकत भी माफ नहीं, वो काम नहीं अल्लाह का कर रहे, जो तलवार लेके खड़े हैं, जो दुश्मनों का सर काट रहे हैं, अल्लाह के दुश्मनों का सर काट रहे हैं, वो भी तो दीन का काम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह को तेरा झुकना बड़ा पसंद है, चाहे वो मैदान जंग हो, चाहे वो मैदान अरफात हो, चाहे वो मैदान तवाफ हो, अल्लाह चाहे वो बैतुल्लाह का तवाफ हम करें, अल्लाह को तेरा झुकना बड़ा पसंद है। वो तेरा झुकना जो है वही असल इबादत है, वही अल असर अल्लाह का जिक्र है। वो कहाँ पहुंच गए हम, हमने औलादों को क्या सिखाया। और दूसरी चीज है जो हमने शुरू करना है, जहां कुरान का तर्जमा तशरीह, किसी उम्र की कोई काद नहीं, कोई औरत आए, बच्ची आए, छोटी आए, बड़ी आए, कुरान का तर्जमा सिखाया जाएगा उनको। तो मैं अलाइना इल्लल बलागुल मुबीन।